Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your fungal systematics and extremophiles. We have started with the cultivation and isolation part, and we have already completed some of the cultivations of different kinds of the extremophiles, and also we have seen how to enrich them in the laboratory. So here on we will see the one more type of the cultivation of extremophile, that is the Haloarchaea or the halophiles. Okay, we will see how to cultivate them, how to collect the sample and all these things in this PPT. Okay, so without wasting any further time, let's start. So as you all know, we have studied about the halophiles, during which we understood that the halophilic bacteria are those, or we can say halophilic organisms are those types of the organisms which require the higher concentrations of the salts as compared to the one which we give for the normal bacteria or the normal microorganisms. Okay, they grow in the higher salt concentration, which is impossible practically also for the normal bacteria to grow. We all know if the osmotic disbalance happens, then it can lead to the death of the organism or the lysis of the organism. But these extremophiles that are known as Haloarchaea or Halobacterium, they, or any type of the halophiles, they have that ability in them that they can grow in the extremely high salt conditions. Okay, that means they don't get affected by them. Whatever the salt conditions are there, they can grow over there. Okay, why? Because they have adapted themselves with these kinds of the environments where there are the higher salt concentration as compared to the ones which we grow the normal bacteria or the normal microorganisms. Okay, so in this PPT we will see how to cultivate those kinds of the extremophiles which have the ability to grow the at the higher salt concentrations. Okay, if you remember, we have seen the adaptations also, that how they have adapted themselves to grow at such conditions. Okay, so now when we need to grow them inside the lab, firstly we need to understand what are their mechanisms, then which are the environments in which they grow, and that's what we have studied already. Okay, so here we will see that how to actually do the cultivation and isolation of these kinds of the halophiles. So without wasting any time, let's start. So the first thing we need to know about the halophiles is that these halophiles are very complicated things to do. Okay, cultivation of them is very complicated things to do. As I told you कि extremophiles होते ही कॉम्प्लिकेटेड है, उनको ग्रो करना उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बिकॉज उनको हम नॉर्मल कंडीशंस पे ग्रो नहीं कर पाते, और वैसी कंडीशंस लैब में अवेलेबल कर देना या फिर ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करना इज़ वेरी टेडियस जॉब. ओके, वी कांट प्रैक्टिकली, इट इज़ वेरी हार्ड टू डू इट. ओके, इसके लिए आपको वेल इक्विप लैब लगती है, देन वैसे आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए सो एज टू कल्टिवेट देम. तो ऐसे हेलोफाइल्स का भी वही चक्कर है कि इनको भी आपको ग्रो करने के लिए वैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपके नॉर्मल लैब में कभी कभी नहीं अवेलेबल होती. ठीक है, तो इसलिए इनका भी कल्टिवेशन जो है, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ टीडियस जॉब. ओके, नाउ अगर इनकी बात करें तो अब ये क्यों टेडियस है? ये तो नॉर्मल से भी बहुत टेडियस है, क्योंकि अगर आप चाहो कि आपको इनको ग्रो करना है, ठीक है, और आप जो भी मीडिया में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें डालते हैं. ठीक है, हम कुछ इंडिकेटर्स डालते हैं, कुछ अकॉर्डिंगली उनके न्यूट्रिएंट्स डालते हैं सो दैट हम उनको ग्रो कर सकें. लेकिन होता है इनके मामले में ये है क्योंकि हम ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो जो भी आप मीडिया में न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हो, कभी कभी वो कोयागुलेट हो जाते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर आपको सपोज देखना है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको देखना है कि कोई हेलोबैक्टीरियम या हेलोफाइल जो है वो कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो वो स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको प्रोटीएज स्टडी करना है. ठीक है, प्रोटीएज का आइसोलेशन स्टडी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मीडिया में आपको डालना पड़ेगा स्किम्ड मिल्क. ठीक है, मिल्क पाउडर हम डालते हैं, स्किम मिल्क पाउडर मीडिया में. और होता क्या है, हेलोबैक्टीरिया या फिर हेलो फाइल्स को ग्रो करने के मामले में होता ये है कि हम जब ये स्किम मिल्क वगैरह इंडिकेटर्स डालते हैं तो वो लोग कोयागुलेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एंजाइम प्रोडक्शन नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि मीडिया ही कोयागुलेट हो जाएगा तो बैक्टीरिया खाएंगे क्या, तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे एंड हम कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. इसके लिए अभी रिसर्च है, अभी टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उनको लैब लेवल पे ग्रो कर सकते हैं. नाउ जैसे हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि कौन से आप एडिटिव्स यूज़ करते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम
इनको ग्रो करने के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं सॉलिड मीडिया, उसमें ऐड करने के लिए वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द जेलिंग एजेंट्स लाइक जिलन गम और जेराइट। ओके, जेलराइट हम यूज़ करते हैं या फिर जिलन गम यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने लैब में अगार यूज़ करते हैं, उसके अपोजिट हम अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है हमें पता नहीं कौन सा ये मीडिया रिक्वायर्ड होता है इनके लिए, या फिर कौन सा पता नहीं ये इंडिकेटर डाइज वगैरह हो, या फिर इंडिकेटर जो भी हम सब्सटेंसेस डालते हैं वो कौन सा पता नहीं कोएगुलेट हो जाए। तो ये ध्यान रखते हुए वैसे साइंटिस्ट ने मीडिया बनाए हैं कि जिससे वहाँ हम ग्रो कर सकते हैं इन हेलोफाइल्स को लैब में। ठीक है, नाउ एक प्रॉब्लम आ जाती है हेलोफाइल्स ग्रो होते वक्त कि इनको ग्रो होने के लिए जो है हमने मीडिया जो हम देते हैं उनको, वो मीडिया ड्राई हो जाता है। ठीक है, बहुत बार, क्योंकि क्या होता है हेलोफाइल्स बहुत स्लो ग्रो करते हैं, इनकी सलाइनिटी पे डिपेंड करता है। अगर सलाइनिटी जो है हम मेंटेन कर पाए तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है ओवर द टाइम सलाइनिटी लेवल डिक्रीज हो जाती है या फिर चेंज हो जाती है। अगर हम वो लोग मेंटेन ही नहीं कर पाए वो सलाइनिटी, तो क्या होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हेलोफाइल्स होते हैं उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो ग्रो होना बंद हो जाते हैं या फिर ग्रो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से तब तक मीडिया पूरा ड्राई हो जाता है और फिर मीडिया का भी कुछ यूज़ नहीं होता उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हेलोफाइल्स ग्रो करना इज़ अ वेरी टेडियस टास्क। तो इसलिए अभी फिर भी कुछ टेक्निक्स है ऐसी मीडियाज अभी डिज़ाइन किए गए हैं जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। हम आज वो देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द हेलोफाइल्स, फॉर द कल्टिवेशन, फॉर द आइसोलेशन ऑफ द हेलोफाइल्स। आज हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो आइसोलेशन जो आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे फ्रॉम दी हाइपर सलाइन लेक्स। ये जो आइसोलेशन हम हेलोफाइल्स का हम चेक करने वाले हैं, दैट विल बी ऑफ दी सैम्पल टेकन फ्रॉम हाइपर सलाइन लेक्स। ठीक है, लेक्स से हम लेने वाले, बट लेक्स कैसी है, हाइपर सलाइन, जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे आपको इजीली हेलोफाइल्स मिल जाएंगे। ऊपर से हमें इसमें से भी कौन सा हेलोफाइल आइसोलेट करना है, दैट इज़ द हेलो आर्किया। ठीक है, तो हमने अब क्या होता है जनरली जो भी एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं ना, वो जनरली आर्किया ही होते हैं। ठीक है, आर्किया ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमोफाइल्स मिलेंगे। अगर आप ट्राई भी करोगे तो अराउंड बहुत कम जो है बैक्टीरिया होते हैं, अराउंड 25% आपको हेलोबैक्टीरिया मिल जाएंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो हेलोफाइल्स होते हैं वो आर्किया होते हैं, उनको हेलो आर्किया कहा जाता है। ठीक है, तो जो आर्किया होते हैं, अगर हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा देखा गया, उनको ऐसा दिखा कि जब उन्होंने हेलोफाइल्स का कल्टीवेशन किया, ठीक है, लैब में, तब उनको ऐसा दिखा जब उन्होंने सैंपल का डायरेक्ट काउंट किया, ठीक है, विदाउट एनी कल्टीवेशन, तो उनको डायरेक्ट काउंट बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन कल्टीवेशन के बाद उन्होंने जब वायबल काउंट चेक किया, वायबल काउंट मतलब कि हम कॉलोनीज काउंट करते हैं, ठीक है, तब उनको वो काउंट थोड़ा कम दिखा। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि उनमें डाइवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन उसमें भी जो है डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वैरायटी थोड़ी कम है। ठीक है, जैसे हमें चाहिए वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटीज़ होती है वो थोड़ी सी कम है, बट डेंसिटी बहुत ज़्यादा आपको हाइपर सलाइन लेक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, फिर उनको आइसोलेट करना था हेलो आर्किया, क्योंकि उनको स्टडी करना था कि वो हेलोफाइल जो होते हैं वो उनके एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करते हैं, कैसी उनकी इकोलॉजी होती है, कैसे वो कम्युनिटी में रहते हैं। ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए उनको ग्रो करना था, एंड दैट्स हाउ उन्होंने उनका आइसोलेशन का मैकेनिज्म बनाया, सो दैट कि हम उनको आइसोलेट कर पाए, उनके अकॉर्डिंगली हम स्टडी भी कर पाए उनके बारे में, एज वेल एज हमें उनसे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हेलो आर्किया को आइसोलेट करना था। अब आइसोलेशन के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये लगती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सैम्पलिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम जो है पहली चीज़ जो करते हैं दैट इज़ द सैम्पल कलेक्शन। कोई भी कल्टीवेशन हो, कोई भी आइसोलेशन हो, जो पहली चीज़ आप परफॉर्म करते हो दैट इज़ द सैम्पल कलेक्शन। तो वो सैम्पल जो है वो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वी आर गोइंग टू कलेक्ट दैट सैम्पल फ्रॉम हाइपर सलाइन लेक। ओके, क्योंकि ये हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे वैसे पानी में तो आपको मिलेंगे नहीं, वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, एक तो सी वाटर हो, ओशियन वाटर हो, या तो फिर कोई लेक्स या कोई रीजन जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जो मेथड दी गई है इट इज़ डन यूजिंग द हाइपरसलाइन लेक्स। ओके, हाइपरसलाइन लेक्स से जो है आइसोलेशन किया गया है ऑफ द वॉट हेलो आर्किया। ओके,
अब सैम्पलिंग करनी है तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपने एक अच्छा सा लोकेशन सिलेक्ट करना है यूजिंग द जीपीएस। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने जो सैंपल लेना है, कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करना है इन द स्टराइल वाटर टाइट, ओके, वेरी टाइट, एयर टाइट, वी कैन से वाटर टाइट, एयर टाइट टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है। उसमें आपको स्टोर कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए उस कंटेनर की अबाउट फ्यू एमएल्स, ओके, फ्यू एमएल्स तक उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जो है बस आइसोलेशन करना है तो आप थोड़ा कम भी सैंपल लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको उस पानी को, ठीक है, उस पानी में क्या कंटेंट है या उसमें कैसे मिनरल्स होते वगैरह ये सब एनालिसिस करना है तो आपको थोड़े ज़्यादा जो है सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। अबाउट 500 ml तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, आधे लीटर तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप सैंपल ले सकते हो अपने कंटेनर में, ठीक है। देन एक ध्यान आपको रखना है, अब आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो सैंपल कलेक्शन के वक्त जो हम यूजुअली प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारे हाथ वगैरह सैंपल को टच नहीं होने चाहिए, तो ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, उस सैंपल को थोड़ा सा दूर रखना है यूजिंग द स्ट्रिंग और एनी काइंड ऑफ दी स्टिक, ओके। उसकी मदद से वी कैन कीप द सैंपल अवे फ्रॉम आवर बॉडी टच, सो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सैंपल कलेक्ट हम करने वाले हैं वो कहाँ से करना है। अब ये तो ठीक है हाइपर सलाइन लेक से करना है, बट सलाइन लेक में भी कहाँ पे, सेंटर में करना है, डीप सी में करना है, सरफेस पे करना है, तो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन एक तो आप रिवर बेड मतलब जो किनारा होता है वहाँ से भी सैम्पलिंग कर सकते हो, बट ऐसा पाया गया है कि जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया आपको मिलेंगे वो डीप डाउन वाटर कॉलम में मिलेंगे, ठीक है। तो डीप सैम्पलिंग आप कर सकते हो और आपको पता है लेक्स क्या इतनी गहरी वगैरह नहीं होती, तो आप इजीली वाटर डीप वाटर भी आप इजीली ले सकते हो। जैसे सी केस में हमें थोड़ा सा केयरफुली और थोड़े हाई इक्विप्ड सैम्पलर चाहिए होते, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, आप इजीली सैम्पलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली आप सैंपल ले सकते हो फ्रॉम द लेक्स, ओके। देन सरफेस की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सरफेस के भी वाटर की सैम्पलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हुई बात सैम्पलिंग की। अब इनका सैंपल अब हमें लैब पे ले जाना है, तो लैब में ले जाने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि स्टोरेज जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके बिलो करना चाहिए यूजुअली, जैसे हम करते हैं। बट जितना ज़्यादा हो उतना जल्दी आप इस सैंपल को यूज़ करें तो अच्छा है, अदरवाइज़ वो फिर लाइसिस हो जाता है उनका, बहुत देर तक आप वैसे रखोगे तो वो ज़्यादा देर तक भी रेफ्रिजरेटर कंडीशन में नहीं रह पाते। तो एक प्रिकॉशन आपको लेना है कि उनको जल्दी से लैब में पहुंचाना है और जल्दी से आपका स्टडी करना शुरू करना है, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अलॉन्ग विद दैट उस सैंपल को लेबल भी आपको करना है। कॉमन सेंस की बात है कि आपको उसको लेबल करना चाहिए कि आपने कब उस सैंपल को कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, कौन सी कंडीशन में, कौन से जोग्राफिकल लोकेशन में, टाइम वगैरह सब की डिटेल्स आपको रखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई सैंपल कलेक्शन के बारे में, ठीक है। अब आपको कल्टिवेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है वो हम देखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आप हाइलोफाइल्स ग्रो करने वाले हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं या फिर उनको आदत है वो दूसरे कंडीशंस में नहीं रह पाते, उनको वैसी ही कंडीशन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उनको वैसा कंडीशन लैब में देना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू प्रोवाइड देम सी वाटर, ठीक है। सी वाटर भी आपको कि फिर क्या हम सी वाटर डायरेक्टली लाए कोई भी और रैंडमली उनको दे दे, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लिख के लेते कि कौन सी लोकेशन है, तो इसकी वजह से वाटर एनालिसिस वगैरह अगर हुई है उस जगह की तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो सी वाटर है वो कौन सा उसका कंडीशंस होते, क्या कॉन्सेंट्रेशन होते, कितने आयंस उसमें होते, कौन से आयन ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, सल्फेट ज़्यादा है, फॉस्फर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उस सी वाटर के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ जो आपको करनी है दैट इज़ द, अब क्या होता है हम ऑब्वियस कभी कभी हम सी वाटर डायरेक्टली नहीं ला पाते, ठीक है। अब कंडीशन वगैरह सब ठीक है लेकिन हम डायरेक्टली नहीं ला पाए या फिर नहीं अपने पास बचा है, तो आप आर्टिफिशियली सी वाटर बना सकते हो लैब में, जिसको बोला जाता है सी वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। सी वाटर सॉल्यूशन भी आप लैब में बना सकते हो एंड ये बना के भी आप इनका कल्टीवेशन कर सकते हो। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि सी वाटर एक तो आप बना भी सकते हो, या तो फिर दूसरी चीज़ ये कि आप डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था अपने सैंपल अगर ज़्यादा लाया है
तो ईजिली आप वो भी यूज़ कर सकते हो एज अ सी वाटर। तो करना क्या है, डिस्टिल वाटर की जगह आपको मीडिया में क्या डालना है, ये सी वाटर डालना है, ठीक है। तो ये कैसे करना कि फ़िल्टर आउट करना। ऑब्वियस सी बात है, सी वाटर लेंगे तो डायरेक्टली उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे, वायरसेस होंगी। तो अगर आप फ़िल्टर कर सकते हो तो करो फ़िल्टर पेपर की मदद से या फिल्ट्रेशन टेक्निक की मदद से आप फ़िल्टर कर लो उस वाटर को, ताकि कंटामिनेशन दूर हो जाए। बट होता ये है कि वायरस बहुत छोटे होते हैं, तो वायरस कभी कभी आपके मीडिया में आ सकते, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो इसलिए डायरेक्टली आप क्या करो, ऑटोक्लेव कर लो, ठीक है। पहले तो सेंट्रीफ्यूज कर लो ताकि वो जो सॉलिड कंटेंट है वो सेपरेट आउट हो जाए। उसके बाद जो सुपरनेटेंट है वो ले लो एंड उसको क्या करो, ऑटोक्लेव करो, ठीक है। अब ये ऑटोक्लेव करने के बाद आपने करना क्या है, उसको डायरेक्टली आप एक तो एज ए सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिफिशियल सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। तो अब वो कैसे बनाना है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सी वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो बनाना ऐसे ही कि आपको डिफरेंट सॉल्ट्स लेने हैं, ठीक है। लाइक NaCl लेना है। अब ये मैं आपको लीटर के लिए बताती हूँ। NaCl आपको लेना है 250 ग्राम्स, देन यू कैन टेक MgCl2 दैट इज़ फॉर 30 ग्राम्स, देन MgSO2 दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट ऑफ अबाउट 35 ग्राम्स, देन KCl आपको डालना है अबाउट 7 ग्राम्स, NaBr दैट इज़ सोडियम ब्रोमाइड आपको डालना है 0.8 ग्राम्स, NaCO3 सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपने डालना है 0.2 ग्राम्स, ठीक है। एक सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको जस्ट इन जनरल बताती हूँ आपको क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के उसमें डिफरेंट सॉल्ट्स ऐड करना, लाइक NaCl, MgCl, देन MgSO4, KCl वगैरह सॉल्ट्स आपने ऐड करने पूरे 1 लीटर पानी में, ठीक है। अब ये जो पाउडर है उसमें आपने पानी डाल दिया, ठीक है। उसको अच्छे से शेक वगैरह कर लिया। उसमें आपने अब ऐड करना है 5 ml ऑफ CaCl2 का जो सॉल्यूशन है, 1 मोलार सॉल्यूशन, वो आपने कितना डालना है, 5 ml, ओके। किस में डालना है, ये जो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया उसमें। और इसका pH आपको रखना है अराउंड 7.5, बफर वगैरह करके आप जो है pH 7.5 ला सकते हो। और यही आपको स्टोर ऑटोक्लेव करना है। पहली चीज़ तो ये, इसको 500 ml के बॉटल्स में डाल के इसको ऑटोक्लेव करना है, किसको, सॉल्ट सॉल्यूशन को, ठीक है। जैसे हमने वापस सी वाटर को भी ऑटोक्लेव मैंने आपको बताया, वैसे इसको भी ऑटोक्लेव करना है। और इसी का आपको यूज़ करना है मीडिया में डालने के लिए, ओके। डिफरेंट मीडिया में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फॉर द एडिशन एज, क्योंकि उनको हमें फैमिलियर एनवायरनमेंट देना है हेलोफाइल्स को, तो हम सी वाटर बनाते हैं लैब में और सी वाटर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप एक और सॉल्यूशन बनाने वाले हो, दैट इज़ द ट्रेस एलिमेंट सॉल्यूशन SL10, ओके। ये भी आपको यूज़ करना है, ट्रेस एलिमेंट सॉल्यूशन। सी वाटर सॉल्यूशन के साथ साथ ट्रेस एलिमेंट सॉल्यूशन भी आपको बनाना है। उसमें आपने 1 लीटर के लिए डालना है HCl डालना है उसमें, देन FeCl2, देन COCl2, MnCl2, ZnCl2, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन सोडियम मॉलिब्डेट, देन देर इज़ निकेल क्लोराइड, देन देर इज़ द कॉपर क्लोराइड, ऑल्सो दिस टाइप्स ऑफ द, अब मैं इसका कंटेंट आपको भेज दूंगी। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट सॉल्यूशन होता है ये भी आपको डालना है, ये भी आपको बनाना है, बना के फिर ये अब पूरा 1 लीटर है, ठीक है। क्या नाम है इसका, ट्रेस एलिमेंट सॉल्यूशन SL10, ठीक है। ये भी आपको बनाना है, इसको भी आपने अच्छे से ऑटोक्लेव करना है। स्क्रू कैप वाली जो ट्यूब्स होती है ना, उसमें आपको इसमें डाल के ऑटोक्लेव बनाना है। ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। जितना भी आप मीडिया बनाने वाले हो उसमें बस 1 ml डालना पड़ता है, तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक अबाउट 50 ml और उसी को आप ऑटोक्लेव करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहला आपने क्या बनाया, सी वाटर सोल्यूशन, उसके बाद आपने बनाया ट्रेस एलिमेंट सोल्यूशन SL10, ठीक है। अब आपको बनाना है मीडिया। अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो हम एडिटिव्स डालते हैं, लाइक सॉलिडिफाइंग एजेंट्स डालते हैं, अगार हो या फिर अगारोज हो, तो वो कभी कभी कोयागुलेट होते हैं। तो इसकी वजह से आपने एक तो आप ये कर सकते हो कि कोई अगार का अल्टरनेटिव डाल सकते हो, जैसे कि जिलैन जो होते हैं, जिलैन आप डाल सकते हो। या फिर एक अगार है दैट इज़ द वॉस्ट डिफको बेक्टो अगार, ठीक है। वॉस्ट डिफको बेक्टो अगार जो है वो अगार जैसे हमारा अगार होता है वैसा ही, बट इसको वॉश करके हम डालते हैं ताकि क्या होता है उसमें जो भी कंटामिनेंट्स या फिर जो भी कोएगुलेटिंग एजेंट्स है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये जो वॉस्ट डिफको बिक्टो अगार है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द सॉलिडिफाइंग मीडिया, ओके। सॉलिड मीडिया के लिए, सॉलिडिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगार यूज़ करते हैं, बट वो भी कौन सा, वॉश डिफको बेक्टो अगार, ठीक है। तो ये डिफको बेक्टो अगार जो है ये बनाना कैसे है, इसका वॉशिंग कैसे करना है, मतलब अगार पाउडर
पाउडर को वॉश करना है, ठीक है। वॉशिंग कैसे किया जाता है, तो जो अगार की पाउडर होती है, ठीक है, डेफको अगार की पाउडर, वो डाली जाती है इन द कंटेनर। उसमें डिस्टिल वाटर डालना है, शेक करना है 5 मिनट, उसको फिर से वो जो सेटल होने देना है अबाउट 30 मिनट्स, ठीक है। वॉश करने के स्टर करने के बाद पानी जो है वो पूरा सा कलर का हो जाएगा, क्योंकि अगार पाउडर है उसमें, तो वो कलर का पानी फेंक देना है। नीचे का आपको जो अगार है वो वैसे ही रखना है, फिर से पानी डालना है, फिर से शेक करना है, फिर से सेटल होने देना है एंड फिर से वो पानी फेंक देना है, ठीक है। ऐसा अराउंड 3 से 4 बार आपको करना है, ताकि वो अगार पूरी तरह वॉश ना हो जाए और क्लियर जब तक पानी नहीं बनता तब तक आपको ऐसा करना है, ठीक है। और वो जो फाइनल आप इसमें पानी डालोगे और जो क्लियर होगा वो आपको रखना है विथ यू, और इसको एज अगार आप यूज़ कर सकते हो। इसको बोला जाता है डेफको अगार। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो जिलैंस, वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जिलैन और फाइटा जेल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ करके आप डायरेक्टली भी सॉलिडिफिकेशन कर सकते हो मीडिया का। अब ये हुई बात सॉलिडिफिकेशन की। अब इनका इंक्यूबेशन कैसे किया जाता है मीडिया का, टेक्निक्स तो आपको पता है, आइसोलेशन की सीरियल डाइल्यूशन वगैरह करके इसके बाद वी कैन जस्ट प्लेट देम ऑन द अगार प्लेट्स। अगार भी मैंने आपको बताया डेफको अगार होता है, डेफको बेक्टो अगार, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब उनका इंक्यूबेशन कैसे किया जाता है, तो ध्यान ये रखना पड़ता है। अब इनका टेम्परेचर का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। हम 37 डिग्री सेल्सियस पे भी इंक्यूबेट कर सकते हैं, इसलिए कन्वीनियंट है, ठीक है। इंक्यूबेट करने के लिए हमें इसको कुछ स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इसको डार्क में ही इंक्यूबेट करो। अगर आप लाइट में करो तो भी ये ग्रो हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ एक अनवांटेड मेहमान आ जाएगा फिर, दैट इज़ दी अलगी। अलगी हमें नहीं ग्रो करने, हमें इनको बस अकेले ग्रो करना है, तो आपको इनको डार्क में ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अलगी आ जाए, इसलिए आप इनको डार्क में ग्रो करो, 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करो। अलॉन्ग विद दैट हमें जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन आपको करनी है। तो क्योंकि ड्राइंग हो सकता है, तो आपको प्लेट जो है वो एकदम एयर टाइट हमने इंक्यूबेटर डार्क में रख दिया, ठीक है। उसके अलावा आपको एक चीज़ करनी, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, ड्राइंग अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, एक पानी लेना है, एक वेसल में डालना है, उसको ढक्कन वक्कन नहीं लगाना, उसको डायरेक्टली इंक्यूबेटर में वैसे रख देना, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएंगी। उसके अलावा मॉइस्चर लॉस भी आपको होने नहीं देना है। अब वो क्या होता है कि प्लेट्स पे मॉइस्चर जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कि डेसिकेशन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए व्हाट वी विल डू दैट कि वो प्लेट जो है आप टाइम बाय टाइम रिप्लेस कर लो या फिर उनको पोंछ लो अच्छे से, ठीक है। वो रिमूव कर लो मॉइस्चर। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपने जो भी प्लेट्स रखी इंक्यूबेटर के लिए उनको टाइम बाय टाइम चेक करते रहो इंटरवल्स में, ताकि आप देखो कि कॉलोनीज कितनी ग्रो हो रही है कितने टाइम में, ठीक है। क्योंकि क्या हो सकता है कभी कभी ध्यान नहीं जाए तो एक तो ग्रो नहीं होंगी या तो फिर स्लो ग्रो होंगी, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको टाइम इंटरवल्स में इसको चेक करते रहना है, ठीक है। सो ये हुई इंक्यूबेशंस की कंडीशंस। इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं। और जनरली अगर लिक्विड मीडिया में आपने अगर इनको ग्रो करना चाहा तो उनको आपको जो है शेकर पे रखना पड़ता है, ठीक है। थोड़े लो आरपीएम्स पे, अराउंड लेसर देन 150 आरपीएम पे आप उनको ग्रो कर सकते हो, हेलो फाइल्स को या हेलो आर्किया को। शेकर पे भी आप लिक्विड मीडिया में ग्रो कर सकते हो। आपको पता है ना, लिक्विड मीडिया में हम जब डालते हैं तो जनरली शेकर पे रख देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर वही 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर शेकिंग जो स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम रखना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब न्यूट्रिएंट्स कौन सी ज़रूरी है, वो जैसे मैंने आपको बताया, वो तो जो दो सॉल्यूशंस है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ट्रेस सॉल्यूशन, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और सॉल्यूशन है जो आपको बनाना है, विटामिन 10 स्टॉक, ठीक है। विटामिन 10 स्टॉक मतलब क्या, उसमें 10 विटामिन डाली जाती है, लाइक अमाइनो बेंजोएट, बायोटीन, निकोटिनिक एसिड, देन पैंथोथिनेट, then there is the pyridoxamine, then there is thiamine, cyanoalbumin, then there is thiocitic acid, riboflavin, folic acid, ऐसे करके 10 आपको विटामिन डालने हैं एक कंटेनर में। अब विटामिन से तो ये डीनेचर होते हैं, इसलिए इसको ऑटोक्लेव आप नहीं कर सकते, इनको बस फिल्ट्रेशन करके अच्छे से 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके ये भी सॉल्यूशन आपको बनाना है। कौन सा, विटामिन 10 स्टॉक, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि आप जो मीडिया बनाते हो उसमें ये डालते हो। अब मीडिया आपको कौन से यूज़ करने फॉर द कैरेक्टराइजेशन, तो उसको बोला जाता है DBCM मीडिया, ठीक है। DB कैरेक्टराइजेशन मीडिया इसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है जो यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द हेलोफाइल्स और हेलो आर्किया। नाउ ये बनाते कैसे, फिर जो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, सॉल्ट वाटर बनाया था, वो भी आपने डालना है इसमें। वो डालना है अराउंड 1 ml, जैसे मैंने आपको बताया था, वो ट्रेस एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको 1 ml डालना होता है। देन जो
अब सपोज आपको 100 ml बनाना है, तो आपने जो पहले सॉल्ट वाटर बनाया था ना, सी वाटर, ठीक है, वो आपको 100 ml लेना है। उसमें आपको क्या डालना है, ट्रेस एलिमेंट्स का जो सॉल्यूशन बनाया था SL10 मैंने आपको बताया था, वो 1 ml डालना है, ठीक है। उसके अलावा K2HPO4 डालना है, वो 2 ml डालना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या डालना है, NH4 अमोनियम क्लोराइड डालना है, दैट इज़ अबाउट 5 ml, ठीक है। इसके अलावा जो हमने अभी विटामिन 10 की बात की, विटामिन 10 का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था स्टॉक सॉल्यूशन, वो आपको 3 ml डालना है, ठीक है। कार्बन सोर्स आप डाल सकते हो, लाइक पायरुवेट आप डाल सकते हो 0.4 ml सॉल्यूशन बना के उसका, ये भी आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग आपको ऑर्गेनिज्म कौन सा कल्टिवेट करना है, आपको वैसे कार्बन सोर्स डालना है, ठीक है। तो कोई कार्बन सोर्स डालना है, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपको किस में डालना है, जो हमने सी वाटर बनाया था आर्टिफिशियल, उसमें डालना है, और अच्छे से उसको ऑटोक्लेव करना है, ठीक है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एक जो है ग्रोथ मीडिया होता है, दैट इज़ द MGM, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी मॉडिफाइड ग्रोथ मीडियम, ठीक है। मॉडिफाइड ग्रोथ मीडियम करके मीडिया, ये भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दी हैलोफाइल्स। नाउ एक चीज़ ये है कि आपको एक तो आप इनको ग्रो करने के लिए एक तो आप एक्सटेंशन डायल्यूशन कर सकते, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऐसा डायल्यूशन करना कि लास्ट ट्यूब में जो है एक ऑर्गेनिज्म आए और एक ही ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी हमें लास्ट प्लेट पे दिखे। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन डायल्यूशन, या तो फिर आप डायरेक्टली एनरिचमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली सैंपल डाल दो और अकॉर्डिंगली उसके स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम्स डाल दो और एनरिच करते रहो, ठीक है। एक तो वो आप कर सकते हो इन द लिक्विड मीडिया, या तो फिर आप एक्सटेंशन कल्चर कर सकते हो, प्लेटिंग अगर आपको करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रोथ की अच्छे से मॉनिटरिंग करनी, फिर वो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की मदद से आप कर सकते हो, या फिर कोई डाइज आप यूज़ कर सकते हो फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दी ग्रोथ, ओके। बट ग्रोथ आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी, मैंने आपको जैसे बताया हैलोफाइल्स थोड़े डिफिकल्ट होते ग्रो होने के लिए, सो उनकी ग्रोथ वी नीड टू ऑब्जर्व पीरियडिकली, एंड फॉर दैट पर्पज़ आपको को अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। हैलोफाइल्स को ग्रो करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, आप आइसोलेशन कहाँ से कर रहे हो, तो हाइपर सलाइन वाटर से, ठीक है, लेक से। देन आइसोलेशन करते वक्त उसका लोकेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कुछ ऐसा स्टराइल एयर टाइट कंटेनर है, उसमें ही आपको लेना है वाटर सैंपल, बॉडी टच होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, मीडिया कौन से, पहले तो हमें आर्टिफिशियल सी वाटर बनाना पड़ता है, ठीक है। उसका भी आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सी वाटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो SL10 होता है, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट सॉल्यूशन, वो भी ज़रूरी होता है, वो हम 1 ml डालते हैं हर मीडिया में। मीडिया कौन सी यूज़ करते हैं, फिर DBCM, ठीक है, DBCM DB कल्टिवेशन मीडिया आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर मॉडिफाइड ग्रोथ मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हो। और उन सब में आपको विटामिन 10 स्टॉक की भी ज़रूरत पड़ती है। विटामिन 10 स्टॉक आप अबाउट 5 ml डालते हो, ठीक है, मीडिया में। तो ये सब मीडिया बना ली। अब इंक्यूबेशन का भी आपको ध्यान रखना है कि मॉइस्चर लॉस ना हो। 37 डिग्री सेल्सियस पे डार्क पे इंक्यूबेट कर सकते हो, या तो फिर आप अगर लिक्विड मीडिया यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आप शेकिंग इंक्यूबेटर पे भी ग्रो कर सकते हो। बट जो शेकिंग स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम रखना है, 150 के बिलो रखना है। देन इसके अलावा एनरिचमेंट या फिर आप एक्सटेंशन डायल्यूशन टेक्निक से आप ये लोग आइसोलेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग आपको कंटिन्यूसली करनी है ऑफ द ग्रोथ। तो यही सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल कल्टिवेटिंग दी हैलोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, एंड particularly we say about the Haloarchaea. So that's about it. So I hope you understood the lecture. Please try to refer the book that is given by Yogesh sir, and which is already put up on the Telegram. So use that book, and along with that, if you have any query related to this point or any point of your syllabus of semester first, please do contact me, okay. Thank you so much for attending the lecture. Keep watching.